What is fundamental right? Anybody? Huh? मूलभूत अधिकार. Very good. Fundamental rights, they are nothing but the मूलभूत अधिकार, or the rights which are very basic. Is it so? Rights which are very basic. Every person, when takes a birth, there is a something due with that person. आपण ज्यावेळी जन्म घेतो त्यावेळी नेचरने आपल्याला काहीतरी दिलेलं आहे आणि ते काहीतरी दिलेलं असतं, त्या व्हॅल्यू असतात आणि त्या व्हॅल्यू कशा आहेत? इनहरंट व्हॅल्यू आहेत. दे आर इनहरंट व्हॅल्यू, परमनंट व्हॅल्यू विच इज बेस्टोड बाय द नेचर ऑन अस. जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि राइट टू बर्थ, when that particular child is conceived, then it is a very due share of that particular child, due right of that particular child, that the child must take a birth on this particular earth, and nobody can take away that particular right of that child. आणि म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो? द व्हेरी बेसिक इनहरंट राईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर चाइल्ड. Now whatever those rights are there which are recognized through nature, and that right is a very inherent, essential, natural rights of that person, is known as a fundamental rights. Is it so? Whatever recognized by the nature which is a very important for the life, liberty, person, all those rights can be termed as a fundamental rights. When I say it is a matter of liberty, when I say it is a matter of equality, when I say it is a matter of nothing but the freedom of all types of expression, then what we are understanding, these are nothing but the values naturally recognized in human beings. And so all those values can be termed as a fundamental right. Now this concept of fundamental right is not originally recognized. It is actually the modern concept which is recognized in the various constitutional philosophies. So fundamental right was not there in the ancient time. The term was not there in the ancient time. But value was there, and that value is nothing but nobody should discriminate against each other. There should be a fair procedure, there should be equality in all the transaction. All these are nothing but the permanent universal values, and those permanent universal values we are understanding through constitutional law as a fundamental rights. Is it so? Because we understand that from phase to phase, from the development of mankind, there is a transformation, and in every transformation we recognize a changing content of rights. राईट्सचं पण आपण काय करतो? वेगवेगळ्या रूपामध्ये त्याला अंडरस्टँड करतो, अधिकार. आणि मग त्याच्यामध्ये आपण अंडरस्टँड करतो की सम राईट्स दे आर द स्टॅट्युटरी राईट्स, सम राईट्स दे आर द लीगल राईट्स, सम राईट्स दे आर द प्रायव्हेट राईट्स, सम राईट्स दे आर द पब्लिक राईट्स. All these are different labels, different nomenclature of the rights. But when we say fundamental right, in the modern constitution, fundamental rights do find in the constitutional philosophies. And fundamental rights, how they differ from the other rights. When we see fundamental rights, the fundamental rights philosophy provides that the fundamental right only can be enforceable against the government or against the state. How to differentiate fundamental right with the other rights? I said fundamental rights, they are enforceable against the state. It means that
Even state is not authorized to violate the fundamental right of the person. स्टेट को भी ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट. व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी? एनफोर्सेबल का मतलब क्या है? दैट एनफोर्सेबल का मतलब है द राइट्स विच कैन बी implemented, the rights which can be claimed, the rights which can be agitated against the state. तो हम जाते हैं ना कोर्ट में, पिटिशन फाइल करते हैं कि मेरा राइट टू इक्वालिटी वायलेट हुआ है, मेरा राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है, मेरा राइट टू रिलीजन वायलेट हुआ है. ऑल दीज आर नथिंग बट द फंडामेंटल राइट्स. But against whom we are claiming? Government of Maharashtra, Union of India, है ना? So we are claiming those rights against the state, against the government, और इसलिए हम उसे बोलते हैं fundamental rights. Is it so? Now when we see that a person or a human being cannot live without these particular rights, है ना? राइट टू लाइफ, इसके बगैर नहीं रह सकते हैं. जिंदा रहने के लिए राइट टू लाइफ रिकॉग्नाइज होना चाहिए. नॉट ओनली राइट टू लाइफ, जितने भी राइट टू लाइफ के साथ में जुड़े हुए कनोटेशंस है, टर्म्स है, वो सारे ही वहाँ पे राइट टू लाइफ में रिकॉग्नाइज होने चाहिए, है ना? जैसे हम मानते हैं कि हमें घर चाहिए, लेकिन घर स्लम में है, जहाँ पे सैनिटेशन ठीक नहीं है, गंदगी है, कोई भी सफाई नहीं है, तो ऐसी लाइफ एक डिग्निफाइड लाइफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है. तो हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट को बार बार पूछते हैं, वी आर आस्किंग द गवर्नमेंट, why you are not providing a basic necessary sanitation or basic necessary facilities to live a very dignified life. और इसे हम क्यों क्लेम करते हैं? क्योंकि राइट टू लाइफ इज़ अ वेरी फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. तो इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट जो है वो होते हैं जो वेरी बेसिक राइट होते हैं, इसेंशियल राइट होते हैं फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. इज इट सो? अभी 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ. 1789 अमेरिका, दे मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? तो वो अमेरिका का है. तो अमेरिका, दे डिफाइन व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन दे प्लेस अ वेरी इम्पोर्टेंस टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. इज इट सो? Now, how they find that words life, liberty, equality of the individual? We understand that in 1210, 1210, there was a document which is known as a Magna Carta. Magna Carta एक डॉक्यूमेंट 1210 में बना था, और उस मैग्ना कार्टा को हम अंडरस्टैंड करते हैं एज अ वेरी बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल. इज इट सो? उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को. फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी एम्फसाइज करता है ऑन द लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. इज इट सो? उसके बाद 1776 में हम अंडरस्टैंड करते हैं अमेरिकन डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, और ये अमेरिकन डिक्लेरेशन भी एम्फसाइज करता है ऑन द सेम वैल्यू ऑफ द लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं 1948 में बना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को.
और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन इट्स आर्टिकल 1 ये डिक्लेयर करता है कि ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। इज इट सो? तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है, वो एम्फोसाइज करते हैं ऑन द नेचुरल वैल्यू। इज इट सो? नेचुरल वैल्यू को एम्फोसाइज करते हैं। और ये नेचुरल वैल्यू किस में है? तो ये नेचुरल वैल्यू इक्वालिटी में है, लिबर्टी में है, लाइफ में है, इसमें वो बिलीव करते हैं। इज इट सो? और ये सबसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मॉडर्न फिलॉसफी है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है, ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी में ये वैल्यूज़ को ही रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जहाँ पे हिटलर ने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करने की कोशिश की, सारे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, और उसमें मास डिजास्टर हमने देखा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी हमने देखा। और अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को कनकर करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करते रहेंगे, तो देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ होल एंटायर ह्यूमैनिटी। इज इट सो? तो ह्यूमैनिटी को अगर सरवाइव करना है, फ्लरिश करना है, डेवलप करना है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, एंड उसके साथ रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल होना चाहिए। और इसके लिए फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन एवरी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ यूनिक प्लेस टू द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फंडामेंटल राइट वाई दे आर सो मच सो इम्पॉर्टेंट। अभी जब फंडामेंटल राइट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट्स का जो कंटेंट है, राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को हमने प्लेस किया है।